আপনার কাছ থেকে কিছু জানার আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আপনার তো 2 মাস হলো মাসিক বন্ধ হয়েছে। হ্যাঁ। তার মানে আপনি প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ। প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম জবা রায়। বয়স কত? বয়স 25। আপনার স্বামী কি করেন? আগে উনি ব্যবসা করেন। উনি কি আজকে আপনার সাথে এসেছেন? না, উনি ব্যবসার কাজে প্রতি মাসে 5-7 দিন বাইরে থাকে, তো এখন তো বাড়িতে নেই, 2-1 দিনের মধ্যে আসবে। আচ্ছা, ডাক্তার দিদিমণি যে এখানে এইচআইভি টেস্টের কথা লিখেছেন সে সম্পর্কে কি আপনার কিছু জানা আছে? না, আমার কিছু জানা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি বলছি। এইচআইভি হলো একটি জীবাণু যা শুধুমাত্র মানুষের দেহেই বেঁচে থাকতে পারে। এইচআইভি 4 ভাবে সংক্রামিত হয়। প্রথমত, সংক্রামিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে, সংক্রামিত রক্ত গ্রহণে, আগে ব্যবহার করা হয়েছে বা জীবাণুমুক্ত হয়নি এমন কোনো সূচের ব্যবহারের মাধ্যমে, আর চতুর্থত, গর্ভবতী মা যদি সংক্রামিত হন তাহলে তার শিশুতে। আচ্ছা ম্যাডাম, আমার কি এইচআইভি টেস্ট করার বিশেষ প্রয়োজন আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের প্রসবের আগে তার গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে এই এইচআইভি টেস্ট করা অত্যন্ত জরুরি। বলা তো যায় না কখন এই ভাইরাস কার শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে বাসা বেঁধে আছে। তবে এইচআইভি থেকে এইডস হতে প্রায় 5 থেকে 10 বছরের মতো সময় লাগতে পারে। এই ভাইরাস আমাদের জন্মগত প্রতিরোধ ক্ষমতায় আঘাত হানতে পারে না সত্যি, কিন্তু জন্মের পর থেকে আমরা যে সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলি ধীরে ধীরে অর্জন করে থাকি, এই ভাইরাস তার সমস্ত কিছু বিনষ্ট করে দেয়। তবে এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই। এইচআইভি টেস্ট এমন একটি টেস্ট, এটি খুবই জরুরি সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে, তাই এই টেস্টটি খুবই প্রয়োজনীয়। ও তাই নাকি? তাহলে আমি এইচআইভি টেস্ট অবশ্যই করাবো। ঠিক আছে, আপনি এই কনসেন্ট ফর্মটাতে সই করে নিন। এই সইটইয়ের কি দরকার আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে, কারণ এইচআইভি টেস্ট করতে হলে উক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে সম্মতিপত্রে সই করিয়ে তারপর এইচআইভি টেস্ট করতে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। আবার এই রিপোর্টটা এসে গেছে। ঠিক আছে ম্যাডাম, আসি? হ্যাঁ, আপনার রিপোর্ট এসে গেছে, নেগেটিভ আছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, সব ভালো আছে। নতুন প্রভাতে আমার জন্ম হলো। আমি নিশ্চিন্ত, আমি খুশি, আমি মুক্ত। এবার দেখা যাক এইচআইভি র্যাপিড টেস্ট কিভাবে করতে হয়। টেস্ট ডিভাইসটাকে রুম টেম্পারেচারে আনার জন্য বাইরে বের করে রাখলাম। তারপর ক্লায়েন্ট এলে টেস্ট ডিভাইসটাকে খুলে টেস্ট ডিভাইসের উপরে ক্লায়েন্টের আইডি নাম্বারটা লেখা হলো। পিপেট নিলাম, যে আঙ্গুলে প্রিক করব সেই আঙ্গুলের প্রিকের জায়গাটা স্টেরাইল করে নিলাম। ফু দেওয়া যাবে না, হাত দিয়ে বাতাস করে ওটাকে শুকাতে হবে। ল্যান্সেট নিলাম, যা দিয়ে প্রিক করা হয়ে ক্লায়েন্টের আঙ্গুলকে প্রিক করে তার থেকে পিপেট দিয়ে 10 মাইক্রোলিটার ব্লাড নিয়ে টেস্ট ডিভাইসের এস লেখা ওয়েলের পাশে স্ক্রিনের ক্ষেত্রে 3 ড্রপস বাফার দিতে হয়। 5 থেকে 10-15 মিনিটের ভেতরেই আমি রেজাল্টটা নেব। সি মানে কন্ট্রোল, কন্ট্রোলে একটা দাগ আসা মানে টেস্টটি ভ্যালিড। তারপর যদি টেস্ট দাগের নিচে আরো একটি দাগ আসে সেক্ষেত্রে রেজাল্ট হবে এইচআইভি রিঅ্যাক্টিভ। রিঅ্যাক্টিভ হলে কনফার্ম করতে হবে। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हाँ आता हूँ, बस आधा घंटा। चल चल। क्या हुआ? डेंगू, दीप्ति नीड्स ब्लड। ये मच्छर, हर साल यही ड्रामा।
खून चूस के ही छोड़ेंगे। चलो, अब एक मच्छर की वजह से तू अकेले ही 4 लोगों की जान बचाएगा। मतलब? देख, जब तू ब्लड देगा तो प्लेटलेट्स दीप्ति की जान बचाएंगी और बाकी का खून और 3 लोगों के काम आएगा। तो हर 3 महीने के हिसाब से मैंने पिछले साल 1 दर्जन जान बचाई। डूड, मेरे पैर पड़। चल लेट्स गो। जी हाँ, आपके दिए गए ब्लड का सही इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी है। 1 यूनिट ब्लड से प्लेटलेट, प्लाज्मा जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स 1 नहीं 4 जिंदगी बचा सकते हैं। हर 3 महीने में। मच्छर या ना मच्छर, रक्तदान करना है क्योंकि अच्छा लगता है। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা, ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে, আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। यार ये तकलीफ क्यों पाल रहा है? यौन अंगों में तकलीफ यौन रोगों के लक्षण है। इसमें क्या शर्म क्या डर? तो करूं क्या? किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी जांच करवा, जहां डॉक्टर करेगा मुफ्त इलाज और बात रहेगी तुम्हारे और डॉक्टर के बीच। अंकल, आप ठीक तो है ना? बेटा थैंक यू। ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ। बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी। कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ। अच्छा। नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है। रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। सूरज की किरणें फैले जहां तक, हर चेहरे पे मुस्कान है। हो रहा ना अकेला कोई यहाँ पर, एक दूजे का साथ है। ओ तय किया था जो लक्ष्य मिलकर हमने और सरकार ने, हो रहा वो साकार है। हम संग है तो संभव है। हो रही है बात खुल के HIV AIDS पर, भेदभाव छोड़कर अब आया एक बदलाव है, बदलाव है। युवाओं ने भी अपनी हिस्सेदारी दिखाकर बनाई एक नई मिसाल है, मिसाल है। तय किया था जो लक्ष्य मिलकर हमने और सरकार ने, हो रहा वो साकार है। हम संग है तो संभव है, सब संग है तो संभव है। समझ कर समझा कर काउंसलिंग से हो रहा सुरक्षित व्यवहार है। HIV जांच को नियमित करवा कर
खुद के स्टेटस का हर कोई जानकार है। पॉजिटिव निकला अगर HIV तो तुरंत शुरू हो रहा ART उपचार है। सेवाओं का लाभ ले रहे सभी, सबको मालूम अपने अधिकार है। तय किया था जो लक्ष्य मिलकर हमने और सरकार ने, हो रहा वो साकार है। हम संग है तो संभव है, सब संग है तो संभव है। हम संग है तो संभव है, सब संग है तो संभव है। सर आज ट्रेनिंग पे नहीं आ पाऊंगा। क्यों भाई? वो ना थोड़ी कमजोरी है तो। कमजोरी क्या हुआ? सर आज रक्तदान किया ना सर। बढ़िया। 30 मिनट में स्टेडियम पहुंचो। सब जानते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं होती, कुछ भी। 18 साल की उम्र से ही रक्तदान करें। जीतने से कामयाबी मिलती है और रक्तदान से खुशी। करके देखिए, अच्छा लगता है। सीमा, सीमा उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। एक्सक्यूज मी सर। ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार। काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। गुड मॉर्निंग पापा, अभी आपकी चाय लाई। बहुत अच्छा लगता है जब रखता है कोई यूं ख्याल मेरा। अरे भैया, ये किस तरफ से ले जा रहे हो हमें? बहन जी वो रास्ता खराब था इसलिए। जब पूरी दुनिया आपके और आपके बच्चे की देखभाल करना अपना फर्ज समझती है, तो क्यों ना HIV की जांच करवा के एक छोटा सा फर्ज आप भी निभाएं। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो पहले 3 महीने के अंदर HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पर दवाई लेना जरूरी है। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा, ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। चले। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। सीमा, सीमा उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हुआ?
देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। अब रक्तदान करने की खुशी में कोई पार्टी रखता है क्या? अरे भोंपू, तेरी मिली बेबी ने बिल्ली का हैप्पी बर्थडे किया तो कूल, और बाबा लोग ने रक्तदान के बाद थैंक यू पार्टी किया तो फूल। चल चल, खून देने के बाद कोई इस तरह ठुमक ठुमक के नाचता है क्या? कमजोर हो जाता है जैसे टायर पंक्चर। ऐसा? उनके साथ मैं भी गया था खून देने, दिखता हूँ कमजोर। तो थैंक यू पार्टी। नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है। रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्द ही बना लेता है। करके देखिए, अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप लेट हैं। सॉरी सर, बहुत जरूरी काम था। जरूरी काम? इससे भी जरूरी? आज मेरा आज मेरा जन्मदिन है सर। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। घर पे मम्मी ने आरती उतारी होगी। केक मंगाई इनके लिए, केक चॉकलेट वाला। सर हर साल मैं अपने जन्मदिन पर। क्या लेट आते हैं? नहीं सर, हर साल मैं अपने जन्मदिन पर ब्लड डोनेट करता हूँ। आप बैठिए ना प्लीज। किसी की जिंदगी आपकी वजह से, रक्तदान करें। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप सर, आप बताइए समझ कहाँ क्यों मिलेंगे नहीं डॉक्टर? आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, ओए। अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? हाँ, आइए बैठे। ओहो डॉक्टर साहब, मैं अपना मोबाइल घर भुलाया, कल आता हूँ। ओहो डॉक्टर साहब, वो मुन्नी के गुड्डे की शादी है, लड्डू पहुंचा के आता मैं। सुनिए आप। चुप रहिए आप। आइए बैठिए। डॉक्टर साहब, आज अमावस्या और मैंने अंडा भी खा लिया, कल पक्का आता हूँ। बहाना बनाना छोड़िए, शरीर में इतनी तकलीफ है और। अरे दोस्त, बताओगे नहीं तो ठीक कैसे होगा? यौन संक्रमण ही तो है, डरिए मत, पूरा इलाज करेंगे और बात रहेगी सिर्फ आपके और हमारे बीच। बिल्कुल, डर को भगाइए, निकटतम सरकारी अस्पताल में यौन संक्रमण का इलाज करवाइए। डॉक्टर साहब, ऑल इज वेल। সীমা উঠো, কি হলো? চেকআপের জন্য যেতে হবে না? শুতে দাও না। ওঠো। পরের সপ্তাহে যাব, একটু দেরি হলে কি হয়ে যাবে? দেরি হয়ে গেলে দেখলে, এই জন্য জরুরি হলো টাইমের খেয়াল রাখা। গর্ভাবস্থার প্রথম 3 মাসের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব HIV এর পরীক্ষা অবশ্যই করাবেন, যাতে শিশুকে HIV সংক্রমণ থেকে বাঁচানো যেতে পারে আর মা আর শিশু এক সুস্থ আর লম্বা জীবন কাটাতে পারে। সময়ের মূল্য দিলে HIV এর উপর কন্ট্রোল হবে। গর্ভাবস্থার প্রথম পরীক্ষার সময় HIV টেস্ট অবশ্যই করাবেন। সম্মানিত রাজ্যবাসী, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্তর্গত ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। এবছর বিশ্ব এইডস দিবসে কমিউনিটিস মেক দিস ডিফারেন্সেস থিমটিকে ভিত্তি করেই সোসাইটি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মূলত যে 4টি কারণে এইডসের HIV সংক্রমণ ঘটে, এই কারণগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকলেই নতুন করে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।
ব্লাড ব্যাংকের পরিশোধিত রক্ত গ্রহণ না করার ফলে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটতে পারে। আক্রান্ত গর্ভবতী মা ওনার কাছ থেকেও শিশুতে এবং অসুরক্ষিত শারীরিক সম্পর্কের ফলে এই জীবাণু একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে ভয়াবহ যেটা, আজকের নজওয়ান ছেলেমেয়েরা যে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নেওয়া, একই সিরিঞ্জে 4 জন 5 জন 10 জন সেটা ইউজ করছে, আর তার কারণে এইচআইভি সংক্রমণ খুব সহসায় আমাদের নজওয়ানদেরকে সংক্রমিত করে দেয়। আর তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবছর বিশ্ব এইডস দিবসে কমিউনিটিস মেক দ্য ডিফারেন্সেস থিমটিকে ভিত্তি করেই সোসাইটি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমার রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রীগণ, সমস্ত বিধায়কগণ, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, এডিসি কাউন্সিল এবং অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে, তাছাড়া সামাজিক সংগঠন, এনজিওস, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সবার কাছে আহ্বান করব যে এইডস থেকে ত্রিপুরাকে মুক্তি করার জন্য আমরা সবাই মিলে একযোগে তার প্রচার প্রসার করা, সমস্ত এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার মাসিক 1000 টাকার একটি আজীবন ভাতা চালু করেছেন। আর আমি আশা করি এই সব সচেতনতা আর রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা করেছে তার মধ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসব এবং আমাদের যে লক্ষ্য সুস্থ ত্রিপুরা তৈরি করা আর সবাইকে নিয়ে এক শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরি করা, সেই লক্ষ্যে আগে আমাদেরকে সুস্থ থাকতে হবে এবং নিজের পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমাজ এবং নিজের রাজ্যকে সেই দিশাতে নিয়ে যেতে হবে। এই যে এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে এই কার্যক্রম হতে চলছে, আমি আবারও এই সোসাইটিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাবো যে আপনারা জনজাগরণের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে এই কার্যক্রমকে সফল করবেন। এবং আমি আমার প্রিয় রাজ্যবাসীকে আবারও বলবো যে এইডসের সংক্রমণ হয়েছে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে দূরে থাকা, তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া, সমাজের থেকে তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা সমাজের মধ্যে, সেটা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে এবং ওনাদেরকেও পজিটিভ ভাইব্রেশন দিয়ে সমাজের সঙ্গে জোড়া আর ইন ফিউচার যাতে আর না বাড়ে সেই দিকে আমরা সবাই মিলেমিশে সচেতনামূলক কাজ করব এবং যারাই তার মধ্যে আক্রান্ত রয়েছেন তাদেরকে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সেটাই হচ্ছে এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। आपने अपनी टीबी की दवाई तो ली ना? ले लिया मैंने। एक मिनट में। क्या हुआ? ठीक। बेटा, तूने अपनी जांच करवाई? हाँ माँ, टीबी निकली, लेकिन डॉट्स का इलाज शुरू कर दिया है। जिंदगी के हर कदम पे आप डबल सावधानी लेते हैं, तो टीबी के इलाज में भी ऐसा जरूर कीजिए। टीबी संक्रमित मरीजों को अपनी एचआईवी की जांच जरूर करवानी चाहिए ताकि आपके टीबी के इलाज में कोई रुकावट ना आए। सीमा,
সীমা ওঠো, কি হলো? চেকআপের জন্য যেতে হবে না? শুতে দাও না। ওঠো। পরের সপ্তাহে যাব। একটু দেরি হলে কি আরে হয়ে যাবে? দেরি হয়ে গেলে কি হয়েছে? দেখলে, এই জন্য জরুরি হলো টাইমের খেয়াল রাখা। গর্ভাবস্থার প্রথম 3 মাসের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এইচআইভি এর পরীক্ষা অবশ্যই করাবেন, যাতে শিশুকে এইচআইভি সংক্রমণ থেকে বাঁচানো যেতে পারে আর মা আর শিশু এক সুস্থ আর লম্বা জীবন কাটাতে পারে। সময়ের মূল্য দিলে এইচআইভির ওপর কন্ট্রোল হবে। গর্ভাবস্থার প্রথম পরীক্ষার সময় এইচআইভি টেস্ট অবশ্যই করাবেন।